عرفات اور مزدلفہ، یہ دونوں جگہوں کے اوپر جو آپ نے کھڑے ہو کے چلنا ہے کعبے کی طرف، یہ بھی اللہ نے ایز اٹ از کاپی کیا. آپ کو پتہ ہے بات، یہ بات بھی اللہ نے ایز اٹ از کاپی کی ہے. ایز اٹ از کیسے کاپی کی ہے ہم آگے دیکھتے ہیں. Humans are about those about whom Allah the exalted glorious revealed the verse. اللہ نے انہی کے بارے میں ایک ورس ریویل کی. Then hasten to where the people hasten. She further said, the people hastened on the Arafah, whereas Hamas hastened from Muzdalifah, and said, we do not hasten but from Haram. But when the verse was revealed, hasten on from the place where the people hasten on, the Quraishi went to Arafat. اللہ نے حمس کی ان باتوں کو ایز اٹ از ایکسپٹ کیا، اور قرآن چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 199 کے اندر ایز اٹ از ڈال دیا. یہ دکھاؤں آپ کو، میں آپ کو دکھا رہا تھا. کاپی پیسٹ ہے سر، پورا اسلام کاپی پیسٹ ہے. اینڈ ریمبر اللہ ڈیورنگ دا نمبر ڈیز، دین whoever hasten in 2 days there is no sin upon him, and whoever delays there is no sin upon him, for him who fears Allah and fear Allah knows him better وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو بیسیکلی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ایون مزدلفہ میں جانا، منی میں جانا، کھڑا ہونا، قیام کرنا، تیز تیز چلنا، کس جگہ سے تیز تیز چلنا ہے، all of these things were happening، ہو رہی تھیں پہلے سے ہو رہی تھی. پورا اسلام ایک حج جو ہے وہ ایک کاپی پیسٹ ہے. اٹس این ایبسلیوٹ کاپی پیسٹ، بالکل کاپی پیسٹ. آئیے الطاف صاحب کو یہاں دیکھیں اگر یہ گالی باز نہ ہو تو. جی الطاف، پھر گالی بازی، گالی نکالے بغیر بات نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی. بغیرتی لیں گے، اور محمد کو ماننے والے ایسے نہ ہو تو کیا ہوگا. اوکے تو دوستو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. آج آپ کو میں وہ ساری باتیں بتا رہا ہوں جو کہ جز ہیں، اور ہمارے پاس کئی مسلٹے ہیں جن کو بڑا غصہ چڑھ رہا ہے، جو کہ گالیاں نکال رہے ہیں آگے. لیکن ان کی گالی نکالنے سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا نا، بدل تو نہیں جائیں گی چیزیں. فوراً سے پہلے حج جو ہے وہ اللہ کی طرف سے تو نہیں ہو جائے گا. اینی ہاؤ کوئی 3 سپر چاٹیں آئی ہوئی انہیں لے لیتے ہیں. یار ایک تو یہ سپر چیٹ دینے والا بندہ مجھے بڑا پسند ہے، اس کو کچھ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ صرف ایک سپر سٹیکر بھیج دے تو بھی کافی ہے، کیونکہ اس کا نام ہی کافی ہے. وہ کیا یار، وہ انڈیا کا ایک اشتہار ہے، اس کا کیا تھا، نام ہی کافی ہے. کون سے والی چیز کا اشتہار تھا؟ تو اسی طرح یہ جو ہمارا یہ بھائی ہے، اس کا نام ہی کافی ہے، اس کو کچھ لکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن انہوں نے لکھا ہے ایڈم سیکر زندہ باد، اور حضرت کا نام ہے جاٹ روڈ محمد. الحمدللہ جاٹس روڈ مومو یرکبون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے جب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگانا ہوتا ہے نا، تو یہ صرف اور صرف مجھے اسی ٹائم پہ پسند آتا ہے جب میں عربی میں یہ والی لوکیشن پڑھتا ہوں حدیث کی. یرکبون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاٹ نے سواری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری رات. تو جناب تھینک یو سو ویری مچ فار یور سپر چیٹ. وولوو ورسز جیگوار صاحب کہتے ہیں ارریزسٹیبل مل گیا، آج میں آؤں گا اس کے کری ہیں یوز کر کے. اچھا یوز کر کے ایک لفظ انگریزی کا بیچ میں لکھ کے، تو اردو انگریزی مکس کی ہوئی تھی بھائی نے. بلیک پنک نے ایک سپر سٹیکر دیا ہے، بہت بہت دھنیہ واد. ہندی نام نے کچھ ہندی میں کہا ہے، بعد میں نومیر صاحب پڑھیں گے. انلوک مائنڈ پوٹینشیل کہتے ہیں ہاؤ کین دے ہیٹ مورتی پوجا when they themselves having murti in form of a black stone, worshipping it and kissing it
this deserves Guinness record for hypocrisy category. सर बिल्कुल हिपोक्रेसी की कैटेगरी में सबसे आला दर्जे पे है। क्यों? क्योंकि ना सिर्फ ये कि वहां पे जाके से हाथ लगाते हैं, चुम्मी करते हैं, बल्कि वो जो क्यूब है, उस क्यूब की तरफ दुनिया का हर बंदा सपोजिटली मुंह करके नमाज पढ़ रहा है। दुनिया का हर बंदा सपोजिटली इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया गोल है, उसकी तरफ मुंह करके आप नमाज पढ़ नहीं सकते। लेकिन बात आपकी सही है, इस बात को जो है ना बाद में लेके आएंगे जब मैं पत्थर पे जाऊंगा। अभी मैं हज के बेसिक चीजों पे हूं। तो ये पत्थर जो है ये इतना ताकतवर है कि गुनाह भी चूस लेता है, और गुनाह चूस लेता है। ये सफेद था, तो ये वो है जिसने गुनाह चूसे हैं। इसकी एक कंपैरेटिव एनालिसिस है, वो एंड में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा। शकीन काफिर साहब कहते हैं आई एम बैक टू माई एडिक्शन, मिस्ड वॉचिंग यू। अरे शकीन काफिर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, वेलकम बैक टू योर एडिक्शन। ये एक अच्छी एडिक्शन है, बुरी एडिक्शन नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा भी इस्तेमाल ना कीजिएगा इसको। बम्बल बम्बली बीईटी, यार बम्बल बी तो सुना था, ये बीईटी क्या कर दिया आपने। हजरत एडम सर, इनको शिफा की जरूरत है, इनसे कहें जाके नबी के सामान मुबारक पिए। इस्लाम की सच्ची बात बता दी, शिफा तो चाहिए ना। बिल्कुल 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 शिफा चाहिए सर, बहुत जरूरत है इनको शिफा शिफा की। और सुबह सूदो साहब कहते हैं एरम साहब, कुरान इज किताब है, एंड आदि अधूरी बतूरी किताब है, कॉपी पेस्ट बुक है फ्रॉम अदर रिलीजन बुक्स एंड एज पर योर रेफरेंसेस। जी सर, अभी आपको दिखा रहे हैं सारी बातें और बताते जा रहे हैं। जी साहब कहते हैं सुपर नॉलेज एडम ब्रो, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो वेरी मच जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, अप्रिशिएटेड। जी हमारे साथ कोई आनस साहब आए हैं, इनको भी ले लेते हैं, देखते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। जी जी आदम भाई कैसे हो? गाली गलौज करने आए हैं या बात करने आए हैं? जी मैं तो एक्स मुस्लिम बन गया हूँ ना, कल आया था स्ट्रीम में, याद है ना आपको? तो यार एक्स मुस्लिम बन गए हो, कल स्ट्रीम में भी आए थे, तो भाई आज क्यों आए हो? अरे नहीं, हाँ कुछ सवालात बाकी थे, आप थोड़े बिजी थे, आज कर लूँ क्या? नहीं सर, अब मुझे अपना टॉपिक चलाने दें। अभी आप कल आए थे, फिर परसों भी आए थे, तब हमें अपने टॉपिक पे भी बातें कर लेने देना। एक्स जी मुस्लिम तो बन गए, आप ऐसा करें डिस्कॉर्ड ज्वाइन करें ना, तो डिस्कॉर्ड पे हम बातें करेंगे ना। अब हर अच्छा स्ट्रीम में आप हम आपसे बातें नहीं ना करेंगे। कल आपने 1.5 घंटे बातें की हैं। नहीं नहीं, 1.5 घंटे नहीं की, इतना नहीं, उससे कम की थी। चले, अच्छा 1.5 घंटे से कम की थी, 1 घंटा 20 मिनट की है। डिस्कॉर्ड जुड़े ना भाई, यहाँ पे हमें अपना काम करने दें। आपने तो इस्लाम छोड़ दिया है, लोग बाकी लोगों को भी इस्लाम समझने दें और इस्लाम छोड़े वो। जी तो मतलब डिस्कॉर्ड पे पर्सनली बात करेंगे? नहीं तो क्या मैं वहां पे पूरा दुनिया को बुला के लेके आऊंगा? अरे नहीं नहीं, पूछ रहा हूँ यार आदम भाई, इतना है यार, इतना मजाक उड़ाते हैं आप, मैं पूछ रहा हूँ जस्ट। सर ग्रुप वाइस में जब आएंगे तो वहां पे ग्रुप में 8 10 15 20 जो बंदे होंगे वो सुन लेंगे। वन ऑन वन करनी होगी तो वन ऑन वन करेंगे। डिस्कॉर्ड ज्वाइन करें ना। अच्छा आप कंसल्टेशन फीस लेते हो कि फ्री में बात करते हो? भाई फ्री में बात करता हूँ, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करने के लिए आपको पैसे नहीं देने भाई। जी कैसे मैं है मतलब? मैं मोहम्मदन नहीं हूँ। अब ये कैसे के लिए जाके, अब मैं यहाँ पे कैसे भी सिखाऊंगा डिस्कॉर्ड कैसे ज्वाइन करना, हद होती है यार। ये बंदा जो है ना इस्लाम छोड़ के, इसने हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ा जो है ना, वो कहते हैं ना एहसान कर लिया, एक एहसान कर लिया इसने। इतने लोगों ने इस्लाम छोड़ा है यार, बाहर आए हैं, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करते हैं और बड़ी ढेर सारी बातें करते हैं। ये भाई साहब ने जो है ना एक एहसान कर दिया है, अब इनको डिस्कॉर्ड जो है ना ज्वाइन करना भी सिखाया जाए। गूगल कर लो भाई, डिस्कॉर्ड एक ऐप है, जिस तरह बाकी लोग ज्वाइन करते हैं आप भी ज्वाइन कर लो। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? अरे यार ये क्या हो गया, अंधेरा क्यों छा गया, रोशनी क्यों आ गई? ओहो, जब यार ज्यादा रोशनी आ जाती है तो आंखें चुंधिया जाती हैं, और जब आंखें चुंधिया जाती हैं तो फिर यही हालत हो जाती है। क्योंकि जनाब मैं जब भी इतनी रोशनी आती है तो मुझे पता लग जाता है कि रसूलुल मुर्तदीन हजरत इज्जत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे साहिल साहब पधार चुके होते हैं। मुझे देखना पड़ता ही नहीं, रोशनी की शिद्दत से ही पता लग जाता है कि साहिल साहब पधार चुके हैं। साहिल साहब स्वागत है आपका, बहुत बहुत वेलकम। थैंक यू सो मच एडम साहब फॉर द वार्म वेलकम। क्या हाल चाल? सर बिल्कुल सर, दुरुस्त, हम बेहतरीन आपके दर में बैठे हैं और हम दिखा रहे थे कि हज कितना को पेगन त्योहार है, और अभी तक 4 मुसलमान आए हैं, उन्होंने आके सिर्फ गालियां दी और भाग गए।
गाली देना ये तो सुन्नत रही है ना, तो वही सुन्नत को ही फॉलो कर रहे मोमिन हजरात हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। साहिल साहब आपको इतने फ्लावर आते हैं सर, इतने फ्लावर तो कभी हमें भी नहीं आए यार, क्या बात है यार साहिल साहब। साहिल साहब सर आप परफ्यूम में रहते हैं, फ्लावर्स आपको आते रहते हैं सर, आप तो सर खुशबुओं के मालिक हैं। सर मैं ज्वाइन ज्वाइन किया हूँ, लेकिन काम अभी परफ्यूम का ही करते बैठा हूँ। मैं वाला ज्वाइन भी कर लेता हूँ ताकि जितने ऑर्डर्स पेंडिंग थे वो जरा कल को निकल जाए, तो वाला चलो दोनों वाह काम एक साथ हो जाएंगे। काम करते सर करते समझिए कि मैं स्ट्रीम ज्वाइन किया हूँ। यानी खुशबुओं में बैठ के स्ट्रीम ज्वाइन करें हैं और लोग भी आपको फ्लावर पे एकदम फ्लावर दे खुशबू रहे ही हैं। खुशबू है। क्या बात है, क्या बात है, कम से क्या कम बात है। आधा किलोमीटर तक खुशबू फैल चुकी है। बेहतरीन 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 सर, वही मैं कहता हूँ कि होता ही है कि अगर आप खुशबू की दुकान पे जाएं तो आप कुछ ना भी लें तो एटलीस्ट थोड़ी देर खुशबू सूंघ लेंगे, राइट। लेकिन ये जो दीन इस्लाम है, इसमें जब भी आप देखते हैं तो आपको खुशबू आ ही नहीं सकती है। ओए होए होए, तो ये सर बदबू इतनी ही सी बात बदबू थी। है। एब्सोल्युटली सर, जहां देखें बदबू है। अब देखें देखें हिपोक्रेसी की इंतहा देखें कि पेगन पेगन करने वाले खुद पेगन रिचुअल्स को अपना के बैठे हुए हैं और उसके लिए लाखों करोड़ रुपया हर साल जाया करते हैं। एब्सोल्युटली वेस्ट ऑफ मनी है ये। हज की जो भी पैसा जा रहा है, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और क्या साहिल है साहब मतलब आप। एक और बात को ध्यान में रख के अगला सेंटेंस बोलिएगा कि हज को अपना हाजी दिन कहते अपना हैं, हम बर्बाद करने वाला बैतुल्लाह काम जा कर रहे रहे हैं। हाँ हाँ साहिल साहब आपकी आवाज कट के हैं। आई है। हज को लोग कहते हैं कि हम बैतुल्लाह जा रहे हैं, अल्लाह के घर जा रहे हैं। और सर जी यारी ये कैसा कैसा अल्लाह का घर है जिसमें अल्लाह खुद ही नहीं है। जो ये क्या हो रहा है हमेशा दोस्तों। खाली रहता हो। हाँ आवाज नहीं आ रही एडम साहब। सर जरा लैग है मेरे ख्याल में, बहुत जबरदस्त लैग है। हाँ वो मैं डेटा से कनेक्टेड हूँ ना, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये घर हमेशा खाली रहता है। हाँ खाली, अल्लाह होता ही नहीं घर में, क्योंकि अल्लाह वो तो सेकंड सातवें आसमान तक आता है। सेकंड होम हाँ है अल्लाह सेकंड, का। हाँ वो तो आसमान पे और आता है, वहां पे निचले आसमान में। मेहमानों को बुलाता है अल्लाह। अरे कितनी अजीब बात है, देखो अभी कोई कोई जो है रिश्तेदार मेहमानों को बुलाए, किधर भी सेकंड होम में भी बुलाए, तो वो खुद भी मौजूद होता है ना कि यार चलो मेहमान आ रहे हैं तो मैं भी रहता हूँ उधर। बिल्कुल ये सेकंड होम अल्लाह का ऐसा है कि ये जो मेजबान है वो हमेशा गायब रहता है, और मेहमान यूं ही ऐसे मचल मचल के जा रहे हैं और ऐसे ही आ जा रहे हैं। एब्सोल्युटली। अब मुझे खुद बताएं साहिल साहब कि पुराने पेगन लोग जो हज करते थे, वो उनके लिए तो उनका खुदा उधर होता था, चलो उनका तो हज बनता भी था। अब ये जो मुसल्टे तवाफ कर रहे हैं, इनका तो खुदा वहां पे है ही नहीं, इनका वहां जाने का फायदा क्या है साहिल साहब। हाँ सेंस ही नहीं बनता हो तो। अगर आप ये हदीस का दोबारा से मुआयना करें तो मोहम्मद ने आखिरी टाइम में अच्छा पहले ये बम्बल बिलेट साहब को ले ले, कह रहे ले एडम सर, साहिल सर, दोनों को ढेर सारे फ्लावर्स। एडम सर शुडंट फील लेफ्ट आउट। लो जी मेरे लिए भी ढेर सारे वाह, फ्लावर आ गए। सर देखिए इसे कहते हैं प्यार। उन्होंने कहा कि यार क्या मेरे पास बात। फ्लावर नहीं है तो मैं भी फ्लावर ले लूं। शौकीन काफिर ने साहिल साहब को सिर्फ फ्लावर भेजे। साहिल साहब शौकीन काफिर के फ्लावर्स आपको कबूल थैंक यू फरमाइए। शौकीन काफिर भाई। शौकीन और काफिर भाई का नाम बड़ा जबरदस्त है। सर काफिर भी और शौकीन भी हैं। शौकीन काफिर एकदम। बेशक। और ब्लैक पिंक साहब हमेशा की तरह आपका स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं आ गया हीरो। थैंक यू ब्लैक पिंक भाई। और फिर ये ब्लिट्स गेमिंग कह रहे हैं एडम भाई, अबू जर घोंचू अपने अब्बू जैद घोंचू के साथ आया है? नहीं भाई, नॉट इवन अ रिप्लाई वीडियो। नहीं भाई, खत्म हो गया, गया खत्म, टाटा बाय बाय। सर वो रिप्लाई क्या करेगा बेचारा, वो क्या करेगा रिप्लाई करके, फायदा क्या है। वो सर वो तो करते रहेंगे रिप्लाई, वो आप देखें अभी एक दो दिन बाद फिर वो तीन चार बंदों के साथ बातचीत करके कोई ना कोई गेम डालेगा, फिर एक और गेम डालेगा। तो गेम में उन्होंने डालनी है, लेकिन आने की हिम्मत नहीं है, डिबेट करने की हिम्मत नहीं है, सिर्फ वो कुत्ते की तरह बहू करेंगे अपने घर में और कुछ नहीं। वो उसने साहिल को पहले ही कह दिया है कि हम नहीं जाएंगे किसी के चैनल पे, तुम लोग इस्लामोफोबिया भी लाते हो। तो फिर इस्लामोफोबिया फैलाने वालों को अपने चैनल पे नाम ले लेके प्रमोट क्यों कर रहे हो, गधो। एक तरफ हम लोग इस्लामोफोबिया फैलाते हैं, दूसरी तरफ तुम अपने चैनल पे
अपने तरीके से हमारी बातों को काट काट के अपने तरीके से मोल्ड करके जवाब दोगे तो फायदा, यानी कि अपने ही लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। थैंक यू। जैसे अल्लाह ने बेवकूफ बनाया, जैसे तुम्हारे नबी ने बेवकूफ बनाया। आइए देखें नबी ने कैसे बेवकूफ बनाया, एक बार फिर देखते हैं। On the day of Nahr, 10 Zulhijjah को Prophet sent Abu Bakr, the leader of the pilgrimage. Abu Bakr sent me along with the other announcers. क्या? To Mina. Make a public announcement. मीना के अंदर जाके public announcement दो। मीना में क्याम उस वक्त भी होता था, आज भी होता है। याद रखिएगा, मीना का क्याम उस वक्त भी है और आज भी है। नो पेगन इज अलाउड टू परफॉर्म हज आफ्टर दिस ईयर। आज के बाद कोई पेगन नहीं करेगा हज, ये मोहम्मद ने कहलवाया। एंड नो नेकेड पर्सन इज परफॉर्म तवाफ, और कोई नंगा बंदा भी परफॉर्म नहीं करेगा तवाफ। और क्यों नंगा नहीं करेगा? क्योंकि पुराने जमाने में मोहम्मद के एक फॉलोवर, मोहम्मद के नस्ल में से कुछ लोग थे जो हमस कहलाते थे, जो कि कुरैशी थे। वो लोगों को कपड़े देते थे हज करने के लिए, जिनको हमस कपड़े नहीं देता था वो हज नहीं कर, वो हज नंगा करते थे। तो ये जो हमस की तरफ से जो एक ट्रेडिशन चल रहा था कि इन चादरों में हज करना है, उसी को एहराम बना दिया मोहम्मद ने। सो एहराम भी प्री मक्कन है, प्री मक्कन, प्री मक्कन। और फिर उसके बाद अली से उसने क्या करवाया कि जाओ सूर्य बरात पढ़ो, कि आज से दोस्ती खत्म, टाटा बाय बाय, जहां मिलोगे हम मार देंगे, अनलेस तुम नमाज पढ़ो, तौबा करो और ज़कात दो, यानी कि इस्लाम आज ले आओ, वरना तुम्हें मार देंगे। और फिर अली ने भी जाके ये सबको अनाउंस किया कि मिना में जाके कि भाई कोई नहीं आएगा पेगन, सिर्फ मुसल्टे आएंगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द पेगन्स एंड मुसलमान, कि जब पेगन्स के पास काबा था तो मुसलमान भी वहां पे आके तवाफ करता था, और जब मुसलमानों के पास काबा आया तो बाकी सारे नॉन मुस्लिमों को वहां से दफा दूर कर दिया कि तुमने तवाफ नहीं करना। इसे कहते हैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। जी साहिल साहब। ओके, ये बात आपकी तो बिल्कुल सही है आलम साहब। थैंक यू साहिल और ये साहब। तो मोमिन मोमिन साहब, मोमिन हजरत हमारे आके बताएं तो कुछ मालूम पड़े ना किस तरीके से वो लोग इसको डिफेंड कर सकते हैं। सर वैसे तो ये इनडिफेंसिबल है, लेकिन अगर वो डिफेंड कर जलेबी तो सकते हो तो बनाते ही है ना हमारे मोमिन हजरत। हाँ, जलेबी बना के दिखा दें, हम सारे देखना पसंद करेंगे। अच्छा, अब तवाफ काबा को तो हमने देखा, तो तवाफ काबा को देखते देखते हम जरा एक और चीज को देख लेते हैं, ठीक है? कि जमाना जहलियत में ये जो काला पत्थर था ये किस लिए यूज होता था? दोस्तों आपको पता होगा कि मोहम्मद जब आया तो औरतों की हुर्मत खत्म हो गई। उससे पहले औरतों की हुर्मत में फीमेल्स देवी देवताएं उस वक्त भी वहां पे थी, जिनमें से एक देवी का नाम बहुत आपने कॉमनली सुना होगा, अल्लात। ठीक है, अल्लात थी। अब वो जो अल्लात थी, फिर उसकी बेटियां थी अल उज्जा और अल मनात। उसी तरह काबा के अंदर ये जो पत्थर है, ये एक, आप आज भी देखें, मैं आपको जरा स्क्रीन पे दिखाता हूं, मजा तभी आएगा जब मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा। हजरा असवद इन काबा, एक सेकंड, जब तक मैं दिखाऊंगा नहीं तब तक आप लोगों को समझ नहीं आएगा। ला 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 ला। ले जी, ये हम जरा इसको विजिट करते हैं साइट को, और फिर आप लोगों को समझ आएगा। ओके, अगर हम काबे को देखें, जैसा कि उन्होंने तस्वीरें मुसलमानों ने इतनी अच्छी अच्छी लगाई हुई हैं, तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम काबे की ये तस्वीरें देखें तो ये क्या लग रहा? अगर आप देखें जरा, जिस तरीके से इसकी शेप बनाई हुई है, जिस तरीके से इसकी शेप बनाई हुई है, ये आपको क्या लग रहा? थिंक अबाउट इट। मैं आपको इसकी दिखा देता हूँ शेप।
اگر کسی کو شک ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. میں ایسا کرتا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پوٹینشلی کوئی. تھینک یو سو ویری مچ. لوگ پہنچ گئے ہیں وہاں تک. بالکل پہنچ گئے ہیں لوگ. بالکل لوگ پہنچ چکے ہیں. تو جناب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ وہی شیپ ہے. یہ وہی شیپ ہے. یہ وہی فیمیل کی شیپ ہے. آج بھی انہوں نے اس شیپ کو بدلا نہیں ہے. آج بھی انہوں نے اس شیپ کو بدلا نہیں ہے. اب اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمارے پاس اس کی گواہی کون دیتا ہے؟ اس کی گواہی خود اسلامک کتب دیتی ہے. یہ کتاب سیرہ حلبیہ ہے. ٹھیک ہے. سیرت حلبیہ یہ بتاتی ہے کہ ہم اس کو کرتے ہیں انگلش میں ٹرانسلیٹ تاکہ نظر آ جائے. اور ہم یہاں پہ سرچ کرتے ہیں menstruation woman. کہتے ہیں کہ it turned black when the menstruation touched it in the pre-Islamic era. It was previously mentioned that it turned black when Adam wiped his tear. It was also mentioned that the sin of children of Adam have turned it black. Multiple theories ہیں کہ یہ black کیسے ہوا. One of it is کہ جو عورتیں مینسز کے اندر ہوتی تھی جن کو بچے نہیں ہوتے تھے وہ آتی تھیں اور اپنے مینسز والا خون جو ہے نا اس کو آ کے لگاتی تھی. اپنا مینسز والا خون اس کو آ کے لگاتی تھیں کہ ان کو بچے ہو جائیں تو اس وجہ سے کالا ہو گیا. تو وہ مینسز والا خون لگاتی کیوں تھی کہ اس زمانے میں تھا کہ جس کو خون آ رہا ہے اس کا مطلب ہے اس کا بچہ گر گیا. یہ بھی ایک تھیوری چلتی تھی. تو وہ مینسز والا خون آ کے لگاتی تھی تاکہ جو ہے بتا سکیں کہ یہ ہمیں ہم جو ہے نا اس کو. اور یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنا اسلامی دشمن لکھ رہا. یہ اسلامی دشمن نہیں لکھ رہا. یہ اسلام کے اپنے لوگ لکھ رہے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ یہ سنی کتب میں لکھا ہوا ہے بلکہ رادر یہ شیعہ کتب میں بھی لکھا ہوا ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ مکتب شیعہ آن لائن. ٹھیک ہے. اس کو بھی ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں اور اس کو بھی میسچوریشن. یہ دیکھیں یہ اوپر ہی لکھا ہوا تھا بلکہ it turned black when menstruation touched it in the pre-Islamic period. It was really okay. تو menstruation کی women جب اس کو ٹچ کرتی تھی تو یہ کالا ہو گیا. شیعہ سنی دونوں ایگری کرتے ہیں اس بات کو. شیعہ سنی دونوں ایگری کرتے ہیں. کسی ایک بندے کی بات نہیں ہے کہ کالا پتھر کالا کیوں ہوا کیونکہ جو عورتیں تھی وہ اس کو ٹچ کرتی تھی. اگر ہم وکی اسلام میں جائیں there is something called fertility rite ritual. ٹھیک ہے. fertility ritual میں کیا ہوتا تھا are the rituals that are intended to stimulate reproduction in humans or in the nature world a group performing the fertility cult. لیکن characteristic کیا چلتے ہیں اس کے. اس میں ایک sacrifice of the primal animal بھی شامل ہوتا. تو جب مسلمان اس کو ٹچ کر کے نکلتے تھے تو وہ نان مسلم پیگنز اس کے بعد جا کے وہ ایک جانور کی قربانی کرتے تھے. جانور کی قربانی کرنا بھی پری اسلامک ریچول تھا. اور آج بھی مسلمان حج کا طواف کرنے کے بعد جانور کی قربانی کرتے ہیں. فرٹیلٹی گاڈس کو جب ٹچ کرتی تھی وہ عورتیں یا مرد اس کی عورتوں کے تو جا کے وہ کیا کرتے تھے ایک جانور کی قربانی کرتے تھے. اینڈ وہ جانور قربانی آج بھی ہو رہی ہے. نام بدل دیا اس کو سنت ابراہیمی ڈال دیا. بیچارے ابراہیم کو جتنا ذلیل اسلام نے کیا کبھی کسی نے نہیں کیا تھا. جو چیز ہے ابراہیم پہ ڈال دو. جو چیز ہے ابراہیم پہ ڈال دو. میکر ان کیلنڈر وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ بعد میں اس کے سارا وہ بتا رہا ہے کہ فرٹیلٹی ریچولز ہوتے کیا تھے کیا کیا ہوتے تھے اور کہاں کہاں پہ ہوتے تھے. عرب میں یہ دیکھیں ان فرنٹ آف دا ماؤنٹ عرفات circulation naked holding vehicle in front of Mount Arafat giving offering to the pillars at Al-Mina and offering sacrifice according to وغیرہ. عرب میں یہ فرٹیلٹی گاڈس کی یہ سارے کام ہو رہے ہیں اور اس کو المنات العزا سے لایا جا رہا ہے. تبھی ابو بکر نے کہا تھا جا کے اپنے بت کی چو کو چاٹو. تو بھائی ابو بکر سے میں پوچھتا ہوں کہ ان کے بت کی چو تو آپ نے اپنے حرم میں لگائی ہوئی ہے ابھی تک اتاری کب ہے؟ وہ جو ابو بکر نے بولا تھا نا جا کے
اللات کی چو کو چاٹو. اور انجینئر محمد مرزا نے کہا تھا نہیں نہیں اس زمانے میں ان کی چو کی پوجا ہوتی تھی. تو جناب ان کی چو جس کی پوجا ہوتی تھی وہ تو آج بھی لگا ہوا ہے آپ کے کعبہ کے اندر, وہ تو آج بھی پھر لگا ہوا ہے. تو بھائی صاحب یہ وہ چیز ہے کہ حج سے بڑا پیگن ریچول پوری دنیا میں پیدا نہیں ہو سکا. لو جی محمد یونس صاحب آیا, دیکھتے ہیں کہ یہ گالی بازی کریں گے یا بات کریں گے. ہاں بھائی محمد یونس, ہیلو ہیلو ہیلو. ہاں ہیلو, کیا کہنا چاہتے ہو آج کے ٹاپک پہ؟ ایک سیکنڈ میں جوائن کرتا ہوں دوبارہ, نیٹ کا ایشو. نیٹ کا ایشو رہے گا, میوٹ کر رہے ہو تو نیٹ کا ایشو نہیں ہوتا. اوکے آگے چلتے ہیں جی. کہ ایک دفعہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نو میٹر ہم کہاں سے اس کو سرچ کریں, کہاں سے دیکھیں, ہمیں یہ سارے ریچول ملتے ہیں. پرافٹ محمد کی بایوگرافی اور سرکولیشن آف دا ریجن, اس کے اندر یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. یہ اس کے ریفرنسز وکی اسلام نے بتایا ہوا. تو بیسیکلی جتنا بھی اسلامک حج ہے دیٹ از آل ایک کاپی پیسٹ. اور ابھی میں صرف حج کے مین چیزوں کے اوپر بات کر رہا ہوں, باقیوں پہ بات نہیں کر رہا. ابھی ہم نے ان کے باقی تہواروں پہ حج کی بات نہیں کی ہے. ابھی تو صفا مروہ رہتا ہے, مینا رہتا ہے, عرفات رہتا ہے, ان سب کے اوپر بات کریں گے. آج ہم ان سب کے اوپر بات کریں گے. سو ود دیٹ بینگ سیڈ ہمارے پاس کچھ سپر چیٹا ہیں, وہ لے لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. لیکن یہ کون ہے؟ ہاں بھائی اے چڈ, ہاں بھائی بھاگ گیا چڈ. اس نے آ کے جو ہے نا دکھانی تھی اور وہ ہم نے بلاک کی بھی ہے تو دکھا نہیں سکا. ہاں یہ ستیا جی کی میں نے سٹار لگایا تھا, وہ کہہ رہا تھا کنسلٹنسی فی. ابے ڈنگرو وہ تمہارے مسلمان لیتے ہیں. شیخ عاصم الحکیم لیتا ہے $110 کے $120 پر ہاف آور پر 30 منٹس. 30 منٹ شیخ صاحب سے اگر آپ نے بات کرنی ہے تو 30 منٹ کے وہ $110 یا $120 لیتے ہیں, یعنی کہ $220 کے وہ 1 گھنٹہ دیتے ہیں. تو بھائی کنسلٹنسی فی, ہم تو سر یہاں پہ فری میں لوگوں کی سیوا کر رہے ہیں, ابھی بھی تم لوگ نہ سمجھو تو کیا ہو سکتا ہے. ہیومن بینگ کہتے ہیں کہانیاں کنہیا لال کے قاتلوں کو بیل مل گئی. تیری خیر ہو جائے, تو بیل ملنی تھی سر. انڈیا میں کون سا کانسٹیٹیوشن چل رہا ہے؟ وہاں پہ تو شریعہ چل رہا ہے, اور شریعہ کے مطابق نان مسلم کو مارا ہے تو نان مسلم کے قتل کے اوپر آپ کے اوپر قتل تو نہیں پڑتا نا, پیسے دو باہر نکل جاؤ. تو انڈیا میں جس وقت قانون آ جائے گا تو گیم سیٹ ہوگی, ورنہ تو ابھی میں دیکھ رہا تھا کل ایک فلم, کیا نام ہے اس کا, دلی کے اوپر بنی ہوئی ہے, کہ دلی میں جب بم دھماکے ہوئے تھے تو ایک پولیس کا بنایا گیا تھا اسکواڈ کہ دلی کے قاتلوں کو پکڑا جائے. تو وہ جو اسکواڈ تھا اس کے اوپر کس طریقے سے پریس نے بھی چھیترول کی, اس اسکواڈ کو مسلمانوں نے وہاں پہ اور مسلمان نیتا نے کس طریقے سے ان کو بندہ نہیں پکڑنے دیا اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو میں دیکھ رہا تھا کہ یار, اور یہ انہوں نے کہا تھا کہ تمام جو میجر ایونٹس ہیں وہ بٹالہ ہاؤس, یس بٹالہ ہاؤس. تو یہ جو سارے ایونٹس ہیں یہ سچے ہیں. ہاں اس کی پکچرائزیشن کرنے کے لیے, ڈرامیٹک سین بنانے کے لیے ہم نے کچھ چینجز کی ہیں, لیکن اصل ایونٹ صحیح میں. سو ان ریالٹی اگر دیکھا جائے تو بھائی انڈیا میں ایک پولیس جو ہے وہ ایک مسلمان آتنکوادی کو پکڑنا جائے تو مسلٹے لڑنا شروع کر دیتے ہیں آ کے, اور اسے پکڑنے نہیں دیتے. سر کتنی بڑی گیم چل رہی ہے وہاں پہ. اب مجھے تو اتنا پتا نہیں تھا انڈیا کا, لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ اس انڈیا کے اندر ڈھیر سارے پاکستان ہے. اس کا مطلب ہے انڈیا کے اندر ڈھیر سارے پاکستان ہے. تو پاکستان سے آپ کیسے لڑو گے جب آپ کے اندر ہی ڈھیر سارے پاکستان بیٹھا ہوا, ڈھیر سارے, ایک بھی نہیں, کئی پاکستان ہے. وہ اینڈ میں جاتا ہے وہ یو پی کے پاس ایک جگہ پہ بندے کو پکڑنے, تو اس جگہ سے اس پولیس کی 2 گاڑیوں میں سے اس آتنکوادی کو بھگا کے لے جاتے. امیجن دیٹ. اور پولیس والا ان کے
कब्जे में है, फिर दे हैव टू मेक अ प्लान टू गेट हिम आउट ऑफ दैट एरिया, और नेपाल के पास जाके उसे पकड़ते हैं। तो यार इट्स जस्ट सो क्रेजी व्हेन यू लुक एट इट। इंडिया में तो मेरा मतलब ढेर सारे पाकिस्तान बैठे हुए हैं, क्या लड़ोगे यार आप एक्सटर्नल से, जबकि आपके अंदर इतने ढेर सारा पाकिस्तान बैठा हुआ है। Anyhow, निशात राव जी कहते हैं भाई 59 says dhikr is protected but dhikr is also referred to Torah 1643 and 21:105. Is it not explicitly Quran? Why you never use this argument to counter those who called Bible? निशात राव, ये इतनी दफा तो मैंने यूज किया है, और कितनी दफा करूं? जितनी दफा करप्शन के ऊपर हमने बात की है सारी, जो मेरी वीडियो है आज से 2 हफ्ते पहले की, कुरान का डिलेमा, उसके अंदर यही सारे आर्गुमेंट्स तो दिए हैं। 18 आयतें दी हैं कि कुरान कन्फर्म करता है तौरा और इंजील को, और फिर बताया है कि जिक्र, वो कहते हैं ना इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, तो उनको यही तो कहता हूँ यहाँ पे कुरान नहीं है, यहाँ पे जिक्र है, और जिक्र तौरा भी और जिक्र ज़बूर भी है। आपने सिर्फ तौरा के रेफरेंसेस दिए हैं, मैं तो ज़बूर के रेफरेंस भी देता हूँ कि ज़बूर भी जिक्र है। तो भाईजान बात यह है कि आई डोंट नो, आप मेरे ख्याल में शायद नए नए हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं। मेरी बहुत सारी डिबेट्स जो हैं वो प्रीवियसली हो चुकी हुई है इस चीज के ऊपर, लेकिन हर दफा एक बंदा आके कहता है बाइबल करप्टेड है, तो मैं इस चीज पे तो नहीं ना जा सकता। हर दफा मैं उसकी करप्शन वाली थ्योरी को सही करने के बजाय, बार बार टॉपिक कुछ और चल रहा होता है, और जब टॉपिक कुछ और चल रहा होता है तो आई हैव टू लेट गो ऑफ सर्टन झूठ जो वो बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो हर सेंटर में 10-10 झूठ बोलने हैं, और अगर आप उनके हर सेंटर के झूठों को पकड़ते जाओगे तो असल टॉपिक पे बात ही नहीं कर सकते हो। तो हेंस कई दफा जब टॉपिक कोई और चल रहा होता है तो मैं उनका ये झूठ को चलने देता हूँ कि यार ठीक है बकलो ये वाली बात, असल मुद्दे पे आ जाओ ताकि हम असल मुद्दे पे बात कर सके। तो यू हैव टू नो कि टॉपिक क्या चल रहा है और उनकी कौन सी वाली बकवास जो है टॉपिक को फुली चेंज कर देगी। सो इस वजह से हर वक्त हर टॉपिक को पकड़ा नहीं जाता, जब वो टॉपिक चल रहा होता है उसी को पकड़ा जाता है, बाकी टॉपिक्स को आपको इग्नोर करना पड़ता है। मेरा ख्याल है आप ये वाली बात इसलिए कर रहे हैं कि येस्टरडे साहिल के चैनल पे मैंने इस बात को इग्नोर करके आगे चल गया था। तो भाईजान ये बातें मेरे को रटी हुई है, डोंट वरी, लेकिन येस्टरडे का टॉपिक चूंकि कुछ और था तो लिहाजा इस चीज को इग्नोर करके आगे चलना जरूरी था। वो तो पहले ही 3 दफा टॉपिक बदल चुका था, तो हर दफा उसके टॉपिक को थोड़ी बदलने देना। ब्लिट्स गेमिंग कहते हैं लास्ट क्वेश्चन, अगर अल्लाह ने तकदीर लिख दी तो टेस्ट क्या है, टेस्ट का क्या लॉजिक बनता है? सर कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो साहिल भाई बेसिकली ये कहते हैं, मैंने भी कई दफा कहा है कि अगर, साहिल भाई ने भी कहा है कि भाई अगर अल्लाह ने तकदीर लिख दी थी और मैंने वही करना जो अल्लाह ने कहा था, तो फिर क़यामत के दिन वो कुछ कर ही नहीं सकता मेरे साथ, मुझे कोई सजा दे ही नहीं सकता, क्योंकि तकदीर उसने लिख दी थी और मैं उसके तकदीर के बगैर चल नहीं सकता, उसके तकदीर में लिखे के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता। तो मेरी गंदी तकदीर लिखने वाला वो खुद है, तो सजा वो खुद को दे, मुझे क्यों दे रहा है? तो ये साहिल भाई का भी बेस आर्ग्यूमेंट है। किसी ने बोला था मुझे, नबी को पूछा गया तब नबी ने भी आंसर नहीं दिया था इसका। जी सर, वो आंसर कैसे देता? वो आंसर कैसे देता? दे ही नहीं सकता था। आंसर उसके पास होता तो देता ना। वो जर्मनी कल वाला दोबारा आया, देखो आज फिर ये इसी तरीके से गेम डालेगा, आके भागेगा के बोलेगा हाँ भाई अनम्यूट कर, नहीं बोलेगा आज भी। अब बेटा मैं तुझे बैन करूंगा, ठीक है? अब तू आएगा और नहीं बोलेगा तो तू बैन हो जाएगा। तो साहिल भाई की तरह मैं इतना पेशेंस का मुजाहिरा नहीं करता। ये सिर्फ ट्रोल है एडम साहब, ये हम बोले ये ट्रोल है एडम साहब, ये कल भी हाँ ऐसी ऐसी हरकत, तो ये ज्वाइन तो नहीं होने वाला। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया सर आपने। और कुछ डंगर जो है ना यहाँ पे आके फिर दोबारा उस घोंचू को, अबू जर घोंचू को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो घोंचू जो है अपने बापों को लेके आओ ना यार, किल क्लैन क्यों कराते हो? किल क्लैन क्यों करते हो? अपने बापों को लेके आओ। रोज बैठे रोज बैठे तुम्हारे बापों का गेम सेट करने। ओके तो ब्लिट्ज गेमिंग थैंक यू सो वेरी मच। निशात राव जी कहते हैं नहीं भाई मैं नया नहीं, मैं आपके चैनल पर आपसे भी पुराना हूँ। हैं मेरे चैनल पर मेरे से भी पुराने हैं आप? ओके ओके साहब ठीक है। अगर साहिल साहब मेरे चैनल पे कोई मुझसे भी पुराना है तो ठीक है यार। Just never saw you using this. My bad. Can you show me references घूमने of? वाला दिमाग आर्ग्यूमेंट
यार निशाद साहब, डिलेमा, इस्लामिक डिलेमा के ऊपर स्ट्रीम की है 2 हफ्ते पहले, उसमें सारे रेफरेंसेस नहीं है, डिबेट के अंदर ये सारे रेफरेंसेस यूज किए। इस्लामिक डिलेमा जाके देखिएगा, अभी कुछ अर्सा पहले किया, डिलेमा इन इस्लाम या इस्लामिक डिलेमा ही है उसका नाम। ओके मेरे चैनल पे सर मेरे से भी पुराने हैं, दैट इज ऑसम। ह्यूमन बीइंग साहब कहते हैं एरम भाई न्यूज नेशन का शो रिज्यूम कब करोगे सर? सर न्यूज नेशन एक चैनल है, वो अपना शो रिज्यूम करेंगे तो हम जाएंगे। ये आप भी उल्टी बात मुझसे पूछ रहे हैं। न्यूज नेशन का शो रिज्यूम कब होगा भाई? मैं कैसे बताऊंगा न्यूज नेशन होता है भाई? प्रो गेमर, ये आपके लिए भाई सर। प्रो गेमर थैंक यू सो वेरी मच यार, अप्रिशिएट इट। आर वुमन अलाउड टू डू हज? ऑब्वियसली भाईजान। अरे वुमन, यार इससे मुझे एक हदीस याद आ गई, सॉरी, अब एक हदीस याद आ गई। देखिए असल में होता यह था कि एक जमाना था मोहम्मद के टाइम का, जिस वक्त वुमेन और मेन हज इकट्ठा करती थी, लेकिन जो हमारे एक्सक्यूज मी, जो हमारे नबी के मानने वाले हैं, वो औरतों के साथ हाजी कर नहीं सकते, उनकी गेम खराब हो जाती है। ये देखिएगा, इट वॉज नरेटेड वी द कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट एंटर्ड ihram फॉर हज ओनली एंड नथिंग एल्स। हमने हज ही करना था और कुछ नहीं करना था। ये चैप्टर क्या बता रहा है कि हज को कैंसिल करके उम्रा कर ले इंस्टेड ऑफ, ठीक है, हज को कैंसिल करके उम्रा करना। तो होता यह था कि जी केम टू मक्का ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 4th जिलहज्जा, 4 जिलहज्जा को, जिलहज जो है ना वो महीना है जिसमें हज किया जाता है, 9वीं 10वीं को हज खत्म होता है, ठीक है, जिलहज की। तो 4 जिलहज को, अभी 6 दिन है हज खत्म होने में। एंड द प्रॉफिट कमांडेड अस टू एग्जिट एहराम एंड मेक इट इनटू उम्रा। तो प्रॉफिट ने कहा एहराम को हज वाले एहराम को खत्म करके उम्रा वाले एहराम में आ जाओ। He heard that we were saying when there are only 5 days between us and Arafat. हमने उस वक्त सुना जब सिर्फ 5 दिन रह गए थे हज में और अराफात में। He commanded us to exit Haram and we will go out of Mina with our male members dripping with semen. ये ब्रैकेट में जो भी है वो अरबी में नहीं है। तो एक जमाना वो जमाना था जिस वक्त मर्द और औरतें हज मिलके करते थे। आजकल इस दिन के मानने वालों को, सऊदीया वालों को पता है कि हम इन लोगों को इकट्ठा कर देंगे ना, तो एहराम में इनके प्राइवेट पास से सीमन उसी तरह गिरेंगे जिस तरीके से नबी के जमाने में गुजरते थे। तो लिहाजा आजकल के जमाने में इन्होंने मिना में और अराफात में लोगों को सेपरेट टेंटों में डाल दिए, क्योंकि वो इकट्ठे टेंटों में नहीं डाल सकते। इकट्ठे टेंटों में डालेंगे तो सीमन इसी तरह गिरेंगे। ये देखिए, इन मिना pilgrim typically stay in the air conditioned tents and these tents are generally organized with separate spaces for male and female pilgrims. उन्होंने मेल एंड फीमेल के लिए सेपरेट टेंट बना दिया। उन्होंने कहा मोहम्मद के जमाने में इकट्ठे टेंट थे, ये लोग तो बर्दाश्त नहीं करते, इनके प्राइवेट पार्ट जो है वो टिले हो के भी उसमें से निकलने शुरू कर देते हैं। तो भाईजान उनको इस वक्त सऊदीया को मेल और फीमेल को सेपरेट करना पड़ा है, सेपरेट टेंडर में ऑपोजिट जेंडर के टेंट रखने पड़े हैं, क्योंकि मोहम्मद के जमाने में भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि नबी भी साथ है, हम अपनी औरतें, गुलाम औरतें या बीवियां कुछ भी जिनके साथ हम ठोका ठाकी ना करें, हज करने आए हुए हैं, इनके एहरामों के अंदर वी विल गो आउट मिना विद आवर मेल मेंबर ड्रिपिंग विद सीमन। वाह! तो भाईजान आज मिना में ये काम इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि उन्होंने मेल एंड फीमेल को सेपरेट कर दिया है, और उस जमाने में सेपरेट नहीं था तो ये हालत होती थी। क्या कहते हैं साहिल साहब, अगर आप कुछ कहना चाहें तो? ओके, लगता है साहिल साहब कहीं आगे पीछे हुए हैं। तो जनाब, हाँ जी, जब टप 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 करके नेटवर्क फ्लक्चुएट हो रहा है एडम साहब। आ रही है मेरी आवाज? जी सर, आ रही है, आ रही है। हाँ, कुछ पूछ रहे थे आप? मैंने कहा सर क्या कहते हैं ये कि एहराम में इनके मेल मेंबर से सीमन ड्रिप कर रहे हैं कि, और इसी वजह से आजकल सऊदियों ने मिना में अलग मर्द अलग और कर औरतों दिया को है। सेपरेट टेंटों में कर दिया है, क्योंकि मोहम्मद के जमाने में जब वो इकट्ठे थे तो यार ये हालत हो जाती थी। तो सर ये क्या कहेंगे आप इस बारे में? मतलब ये क्या 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 फालतूगिरी है यार। सबको मालगाड़ा की दवा की जरूरत थी भाई।
सर वो तो बात चले ठीक है, लेकिन सर एक खुद सोचिए बात, हाँ, वो लिखने वाला कितना बगैरत होगा जिसने लिखा, और वो बोलने वाला कितना बगैरत होगा जिसने बोला, अगर ऐसा हुआ भी है तो। हाँ, हालांकि ये सही हदीस है बाय द वे, इसको देख लें, कोई बंदा ये ना कहे कि हम कोई ज़ईफ हदीस दिखा रहे हैं, सही हदीस है ये, देखें हाँ। सही सही हदीस है। अच्छा, नहीं तो वो देखने क्या वाला, उछलता पानी क्या पूरा अंदर नहीं डालते थे, वही भागते भागते क्या मतलब, हाउ हाउ दिस इज ह्यूमनली पॉसिबल यार, इस तरीके की बात होना और उसको फिर लिखना, मतलब ये मोमिन किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे? यार गुड क्वेश्चन, हाउ इज दिस नेक्स्ट इवन क्वेश्चन। पॉसिबल? क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट आप क्वेश्चन। बताओ मेरे को एडम साहब, ये कैसे कैसे पॉसिबल है, हाउ इट इज पॉसिबल? मतलब हमने बहुत सारे सिचुएशंस जो है वो हमारे सामने होती है, कंडीशंस होती है, हमको पता होता है कि यार चलो फलाना इंसान में ये प्रॉब्लम है, तो उससे ये यहाँ तक उसकी हद हो सकती है कि भाई यहाँ तक हो सकता है। किसी को जो है वो क्या कहते हैं उसको, प्रॉब्लम होती है जिसमें दे यू नो दैट प्री कम और जो भी है ल्यूब्रिकेशन वाला वो निकलते रहता है, तो दैट इज अंडरस्टूड कि भाई चलो वो एक मेडिकल प्रॉब्लम है। लेकिन ये जो बताई गई, इट्स नॉट इवन ए मेडिकल प्रॉब्लम, और इट्स नॉट इवन ह्यूमनली पॉसिबल कि इस तरीके से हो, even if it is recent intimacy or recent sexual intercourse। तो असल में क्या साहिल मतलब साहब मेरा, सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या वो पूरा नहीं निकाल के वो भागते भागते रास्ते में निकल रहा है क्या ये? साहिल साहब मुझे लगता ये है कि कोई एक्सप्लेन हो, कर दे यार मुझे क्या ये। सर 1400 साल पहले, 1400 साल पहले जो मर्द होगा ना सर, वो भी घोड़े की तरह सीमन निकालता होगा, यानी कि तकरीबन 1-1.5 लीटर। तो वो जब 1-1.5 लीटर निकालता है, तो 1-1.5 लीटर निकलते निकलते टाइम लगता है। तो हाँ वो हाँ, है कि ऐसा यार अब कुछ मैं है। 1.5 लीटर अंदर कैसे डालूं, तो वो आधा को लीटर अंदर डाल के बाकी जो है ना उसके साथ ही निकल जाता है, तो वो आहिस्ता 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 निकलता रहता होगा। दैट माइट बी द ओनली रीजन आई कैन थिंक ऑफ। मगर इससे ज्यादा मेरे को नहीं पता सर, ये कुछ ज्यादा अश्लीलता हो जाएगी, अश्लीलता। नहीं ये कोई कोई मोमिन जो है ना वो जुड़ के ये समझाए यार, आई सीरियसली वांट टू नो। सर अब ये हम क्या बता रहे थे, बहरहाल ये यादव साहब का सवाल था, क्या वुमेन अलाउड है हज में? तो भाईजान वुमेन इसलिए अलाउड तो है, लेकिन वुमेन और मैन को इसलिए सेपरेट रखा जाता है कि उनकी मजबूरी है कि उनको सेपरेट रखे, नहीं तो सीमन जो है वो फैल जाएगा। डिस्गस्टिंग यार। सर साहब ये हिंदी कुछ पढ़ लें, कुछ लोगों ने हिंदी में बोला है अभी रिसेंटली, तेरे देखो। आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। हसन अली ओह, मोहम्मद साहब 10 महीने से मेंबर है और कह रहे, बड़ी प्यारी शायरी लिखी है इन्होंने। वाह 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 सर, थैंक ये यू भी सर। एक हिंदी है। सेम है, हसन अली मोहम्मद कहते हैं, नफरत के बाजार में बैसाखी की दुकान खोली थी, कितने साल बीते फिर भी नहीं बिकी थी। जब से एडम साहिल आए हैं धंधे में बरकत आई है, हमने दूसरी शाखाएं मस्जिदों के बाहर खोली है। वाह भाई वाह। वाह 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 क्या वाह। रिकॉर्ड साहब, आज का स्ट्रीम उन मोमिनों के लिए है जो बुत पूजा को शिर्क मानते हैं। वाह, ये सर बुद्ध पूजा, सर आपको आज सारी दिखाएंगे, सारी पूजाएं दिखाएंगे हम इनकी। और रिकॉर्ड साहब कह रहे हैं, आज की स्ट्रीम का टाइटल ही मोमिन की जी में आग लगा रहा है। इसीलिए मोमिन आ भी नहीं रहा है, क्योंकि उससे पता था, मैंने यस्टरडे को मुझे कह रहा था कि यार हज इज अ पेगन रिचुअल, आपने क्यों स्ट्रीम बनाई, ये क्या इसमें मसला क्या है इसमें? और मैंने हाँ, यस्टरडे ये साल की स्ट्रीम में बनाया था कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल टॉपिक, और किसी में हिम्मत नहीं होगी इसके ऊपर आके बहस करने की, बिकॉज ये एक तबाही टॉपिक है इन इटसेल्फ। और ये नॉन मुस्लिमों को सर समझ नहीं लग सकती कि अच्छा यार कोई पेगन चीज है तो क्या हो गया यार, लेकिन ये उसी को पता है जो इस्लाम में था, उसको पता है कि कितना बड़ा टॉपिक है और कितना मेजर टॉपिक है, किसी मुसलमान में हिम्मत नहीं हो सकती इसमें। सही। सर ये रिकॉर्ड एक और साहब है कह इनकी रहे हैं, तरफ से। मोमिन का गाली देना जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार है। ओके, और रिकॉर्ड साहब कह रहे हैं, खाली घर में छोड़ जाते हैं। वाह भाई वाह। बेशक बेशक ये बेशक, थैंक अच्छा यू है, सो वेरी खाली घर मच में जी। छूट जाते हैं। ले जी साहिल साहब, ये कोई डोनाल्ड ट्रंप का डोनाल्ड स्मिथ डोलन आया, ये स्मिथ। क्या है? डोलन स्मिथ। डोनाल्ड स्मिथ मुसलमान हो? हाँ भाई, डोनाल्ड स्मिथ।
अनम्यूट करो यार. हाँ जी, आ रही आवाज आपको? आ रही है मुसलमान हो? नहीं नहीं एडम भाई, बड़ी मुश्किल से कांटेक्ट हुआ आपके साथ. वो एक्चुअली मैं बड़ी दफा कोशिश करता हूँ, मैं ओ यूएस से. भाई, ओ भाई यूएस से भाई, जी डिस्कॉर्ड जी ज्वाइन भाई. करो. बैन हो जाओगे भाई, सिर्फ मुसलमानों के लिए स्ट्रीम. आप अच्छा डिस्कॉर्ड यार, पे था ज्वाइन करो. मुसलमान. चले चले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. था थैंक यू सो मुसलमान, मच कब इस्लाम छोड़ा? सर. पाकिस्तान से जब चला था तो तभी बस तंग था. नमाजें पढ़ते थे? नहीं सर नहीं, क्योंकि माँ मेरी ओके, शी वाज क्रिश्चियन और बाप मुसलमान था, तो इसलिए फिर छोड़ दिया सब चले, कुछ. ये तो जबरदस्त बात तो होगी. अब ऐसा नमाज करे तो नमाज कि अब तो सारा खानदान ही क्रिश्चियन हो गया हुआ है, क्योंकि मेरी बेहतरीन मॉम सर, वेरी वेरी पावरफुल इन क्राइस्ट. बेहतरीन सर, दैट इज गुड, दैट इज ऑसम. चले, खुदावंद का जी शुक्र है आप सब लोग इस जी जी स्टुपिडिटी और कट्टरता से बाहर आ गए. सर आप डिस्कॉर्ड पे जुड़िए, वहां से आपसे बात होगी, ठीक है? जी सर. थैंक यू फ्री सो ऐप है वो, मच, फ्री थैंक यू सो ऐप है, मच. गॉड बिल्कुल ब्लेस फ्री यू ऐप है. ब्रदर, गॉड आपको ब्लेस यू कुछ नहीं देना ब्रदर. वहां पे. थैंक यू सर, नहीं तो टेक वो केयर. कैसे वो आप स्पेल करेंगे उस ऐप का, ताकि मुझे पता चल जाए. वो भाईजान मेरी ढूंढनी बड़ी मुश्किल डिस्क्रिप्शन होती में जाएं, डिस्क्रिप्शन में जाएं वीडियो की, वहां पे डिस्कॉर्ड का लिंक पड़ा, उसे क्लिक कर लें. है. जी नबील कुरैशी को मैं सुना करता था, उसके बाद वो भाई जब चला साहब, गया तो बड़ी. जी जी, चले भाई चले. साहब, भाई साहब, अब तकरीर कर रहे हैं ना. थैंक यू, डिस्कॉर्ड पे बात करेंगे आपसे. ओके. एक्स मुस्लिम तो हैं, लेकिन इनको अभी इस्लाम का बिल्कुल नहीं पता है. ये क्या है? यार ये इसके घर में धमाके हो रहे हैं, इस बंदे के जो आया अभी. नाम इसका है सिफ, सैफ भी नहीं है, सिफ. और इसका ओरिजिनल नाम मैं अभी लेना नहीं चाहता, मुझे नहीं पता कि गेम इसकी खराब ना हो जाए. ओए सिफ, धमाकों से साइड पे जा, ताकि तू बात कर सके. हाँ सिफ, हेलो. बोल. हेलो, मुसलमान हो? नहीं नहीं नहीं, मैं हिंदू हूँ. यार तो अभी मैं किसी, हर बंदे को इंडिविजुअली बताऊं कि नॉन मुस्लिम ना जुड़े? नहीं 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 साहब जी, मेरे को थोड़ा साहिल भाई से बात करना है, माने एक मिनट के लिए. साहिल होगा भाई तो म्यूट पे सर? गए हैं, म्यूट पे गए हुए हाँ. हैं. आप उनको व्हाट्सएप पे मैसेज करें. अच्छा हाँ, ठीक है. नॉन मोमेन स्ट्रीम या नॉन मोमेन स्ट्रीम. सर हेलो. अब सिफ भाई नॉन मोमिन स्ट्रीम में ज्वाइन करें. आप पता नहीं किन धमाकों के पास खड़े हैं. ओके, आई हैव नो आइडिया यार किस तरह बताया जाए इन सबको. एवरीवन को इंडिविजुअली बताया जाएगा कि भाईजान ना जुड़े. ओके, इन द मीन टाइम, ये कौन है? हाँ, यादव साहब दोबारा कहते हैं थैंक यू एडम, यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क सर, थैंक यू सो वेरी मच, अप्रिशिएट इट. और ब्लिट्स गेमिंग क्या कहते हैं? आज के टॉपिक को रिफ्यूट करने मोमिनों के बस का नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन